آج کا ٹاپک کیا ہے سر؟ شرعی طریقے سے اسلام قرآن کے مطابق کس عمر کی بچی کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں؟ جو بالغ ہو، جس کا یہ حیض آتا ہو. کہاں لکھے؟ یہ میں نے مفتی طارق مسعود کے بیان میں سنا تھا. طارق مسعود کی ماں کی جی. ٹھیک ہے، سوری ٹو سے دیٹ. مجھے ریفرنس چاہیے. آپ لوگ ان سے ریفرنس کیوں نہیں مانگتے؟ ہم یہاں پہ جو بھی بولیں آپ ریفرنس 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 چیخنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم وہاں پہ جب آپ لوگ جاتے ہیں تو ان سے ریفرنس لیتے ہوئے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں پوچھتے ان سے کہ یار آپ ریفرنس وہ دیں؟ سر وہ ایسے لائف سیشن نہیں کرتے ہیں نا، اور وہ 1-to-1 کالنگ سیشن بھی چیٹ نہیں کرتے. چیٹ میں ہی پوچھ لیا کریں یار کہ ریفرنس دے دیں. چیٹ میں لوگ پوچھتے بٹ وہ رسپانس نہیں کرتے نا، صرف وہ اپنا وہ سالے ریکارڈنگ جھوٹے کر کے. ہیں، سالے جھوٹے ہیں. یہ دیکھیں عربی اسکالر دکھاتے ہیں. سر عربی اسکالر دکھائیں ان کو. فیض بھی آپ نے آج لگائی بھی ہے لگتا ہے. يعني كلام صحيح البخاري، كلام الفتح، كلام الحافظ في الفتح، كل ده بيقول انه الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيرة التي لم تبلغ الحيض بعد. جی سر، کیا کہا بھائی صاحب ہلو. نے ابھی بھائی صاحب نے کیا کہا ہے؟ یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ فتح باری کو دیکھ لیں یا صحیح بخاری کو دیکھ لیں یا کوئی بھی اسکالر کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ حیض آنا ضروری نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. آگے دیکھتے ہیں. يجوز تزويجها وإن لم يحدث وفاق تطليقها، والشرع قال هذا فعدتها كذا. صحيح اور البخاري. شرن جو ہے كلام الفتح، دوبارہ كلام دیکھ لیں، سوری الحافظ ریمائنڈ ہو في گیا. الفتح، كل ده بيقول انه الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيرة التي لم تبلغ الحيض بعد، يجوز تزويجها وإن لم يحدث وفاق تطليقها، والشرع قال هذا فعدتها كذا. مين اللي قال الكلام ده؟ زي ما بقول لحضرتك كده، ولا لم يحض الصغيرة، يعني الصغيرة اللي هي لم تبلغ الحيض يجوز. نعم. جن لوگوں کو حیض نہیں آئے اور وہ صغیرہ ہیں یعنی کہ چھوٹی بچیاں ہیں. کتنی چھوٹی بچیاں ہیں سنیے گا. طبعا الكلام ليس كلامي، انما الكلام على ايه؟ يعني تبقى مثلا یہ پوچھ رہا ہے مثلا کتنی چھوٹی عمر کی بچیاں؟ كم سنة، يعني 10 سنين 9 سنين 8 سنين لم 11 سنة. يتحدث هنا. کتنی چھوٹی؟ 10 سال 9 سال 8 سال کتنی چھوٹی ہیں؟ جواب آتا ہے کوئی ایج ڈیفائن نہیں ہے. لا الشريعة الإسلامية. وہ کہتا ہے کہ کمپلیٹ شرع اسلامیہ، آل شرع اسلامیہ، مکمل شرع اسلامیہ. کسی نے بھی شادی کی عمر کو ڈیفائن نہیں کیا ہے اور لمٹ نہیں دی ہے کمپلیٹ شرع اسلامیہ کے اندر. كلها هات لي حد يقول لي يتحدث سن کل کمپلیٹ تمام بيوم بسنة ب10 ب15 ب20. 5 سال 4 سال 3 سال کچھ ایج ڈیفائن نہیں کی. ده انت على كده بقى، ده انت ممكن وهي لسه طفلة بقى. تو سوال آیا کیا 2 سال کی عمر میں اس سے شادی کر کے اسے پھینک دیں کیا گھر سے؟ یہ سوال آیا ہے انٹرویو کرنے والے کی طرف سے. جواب سنیے گا. شهر او شهرين بقى ان شاء الله حتى يوم. اس نے کہا کوئی بات نہیں، چاہے ایک دن کی بھی کیوں نہ ہو، even if she is 1 day old. جی صاحب بتائیے، ایک دن کی بچی کی آپ شادی کروا رہے ہیں، اب یہ ایڈم شرع بھائی، اسلامیہ ہے. جی سر. ہاں ایڈم بھائی، عربک اسکالر کچھ اور بول رہے ہیں اور ہمارے ادھر کے اجمی غلام کچھ اور بول رہے ہیں. صرف اجمی غلام ہے نا. شہباز بھائی کیا بولو گے آپ؟ سر یہ ہندو کلچر میں بھی پریکٹس ہوتا ہے، جو بچہ چاہے بات ہوتا ہے نا تو اس کی گھر والے مطلب شادی فکس اچھا کر دیتے. شہباز بھائی، ہندو اگر ننگے ہاں ناچیں گے تو آپ بھی ناچو گے؟ سر یہ میں تو اگزامپل دے رہا ہوں. میں بھی اگزامپل تو دے رہا ہوں نا. میرج ہندو میں اگر تو ننگے ناچیں میرج گے، ایسے مطلب ہندو اگر میرج فکس کر دینا. ہاں چلیں یار سوچ بولیے لیں، بھائی. ایک دفعہ کے لیے ایگزامپل لیں کہ سپوز کریں ہندوؤں کی کسی سپوز فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ ہندوؤں کسی کتاب میں لکھا ہے کہ تم ماں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو،
کیا تم بھی اس کو حجت لے لو گے؟ نہیں نہیں، یہ تو غلط بات ہے نا. تو پھر اس کتاب کو پھر ہندو کیا کر رہے ہیں، اس کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ تم اسلام کی بات کرو نا یار. اگزامپل دے رہا تھا میں سر، لیکن یہ ہے ضرورت کہ نہیں، ضرورت میرج میں کیا پرابلم ہے؟ جب میرج اچھا سے کیا پرابلم ہے؟ ایک منٹ، صرف ایک کانٹریکٹ ہے، میرج از اے کانٹریکٹ، تو ایک کانٹریکٹ کر رہے ایک دوسرے سے. ایک مہینے کی بچی سے آپ شادی کرو گے؟ ایک دن، سوری. کانٹریکٹ ہاں نہیں وہ میں تو نہیں کروں گا، بٹ ایسا اگر میرا 1 مہینے قرآن کا 2 مہینے کا اجازت بچہ دیتا ہے. نا، اجازت دیتا ہے نا قرآن. ہاں دیتا تو ہے. میرا 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہے تو میں اس کی میرج کرا دوں گا نا 1 مہینے 2 مہینے کے آپ کی بچے عمر سے. کیا آپ ہے؟ سے آپ کی بڑا عمر کیا ہے؟ چول اور حرامی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں کہ اپنے بچے کو آپ پیدا ہوتے ہی باندھ دیں گے کسی کھونٹے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ زندگی شاید نہیں نہیں، گزارنا نہ چاہے. چلیے ایک منٹ. میں یہ بلاؤں شہباز بھائی، آپ کی عمر کیا ہے؟ ہوں میری 34 ہے. 34 ہے. ہوں 34 اور 51 میں پتہ ہے کتنے کا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. 17 سال کا. ہوں ٹھیک ہے. 51 اور 34 میں. اور ہوں آپ سے 17 سال بڑے بندے نے 6 سال کی بچی کی شادی کی تھی، آپ کو پتا ہے یہ بات؟ ہاں پتا ہے نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے میرج، آپ ان کی ہاں بات کرو. ہوں ہاں. تو ایسے آپ 34 کے ہو تو 1-2 مہینے کی بچی کی شادی کر سکتے ہو اپنی؟ نہیں سر نہیں کر سکتے نا، یہ تو بہت وہ تو کیوں؟ انفینٹ ہے، اس سے کیسے ہو سکتی ہے میرج؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام تو اجازت دے رہا پوری. اسلام اجازت دے رہا ہے نا، بٹ اس کی لڑکی کی بھی اجازت پوچھنا ضروری ہے نا. وہ اجازت میچورڈ ہوگی جب سمجھے نہیں گی. ہوں تو یہاں ایسا ہے نا کہ لڑکی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، فادر کر سکتا ہے شادی اس کی. نہیں سر یہ تو غلط بات ہے. یہ ابھی میں بھی میرج کے لیے رشتہ دیکھتا ہوں تو لڑکی کی رضامندی پوچھنی پڑتی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ اس معاملے میں اسلام کو غلط مانتے ہیں؟ اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں، اور ایسا ہے تو غلط ہے. انہیں فیضو ایک نے وہ سیکنڈ، غلط ہے سر. 65-4 دکھا دیں ان کو فوراً سے پہلے. غلط ہے، انہوں نے بول دیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سر آج تو آپ اسلام چھوڑیں گے ہی چھوڑیں گے. سر اسکرین دکھائیں 65-4 کی. نہیں جی چھوڑوں گا سر. سر. سر غلط ہے تو پھر اسلام چھوڑنا پڑے گا. من نساؤکم من اشرف نہیں لم نہ چھوڑے یحدنا، کوئی بات نہیں. نہ میڈم نہ چھوڑے کوئی بات نہیں، دیکھتے جائیں. جن کو کبھی خون نہیں آیا، لم یحدنا، جن کو کبھی ہیز نہیں آیا، ان کے مطلب ساتھ جس کو مینسز سٹارٹ نہیں، پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوئے. ان کے ساتھ بھی طلاق دو گے میں ان کو تو آپ کو 3 مہینے کا ویٹ کرنا پڑے گا سر، ان کی اگلی شادی کرنے کے لیے. سر ویٹنگ پیریڈ 3 مہینے کا ہم، کہاں سے ریفرنس نکالا ہو سر یہ؟ قرآن سورہ طلاق آیت نمبر 4 میرے پیارے بھائی. ہوں تو جب تک کہ پھر ان کے مینسز آتا نہیں تب تک کہ ان کی تو عدت کیسے ہوگی؟ یہی تو قرآن کی یہی تو آیت ہمارا دکھا رہی ہے. سوال ٹھیک ہے. یہی تو ہمارا سوال ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، ان کے معاملے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، بوڑھی عورتیں. اور یہی ہوں حکم ان کے لیے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی کہ بہت چھوٹی ہیں. جی سر. سر ایسا ہے کہ حیض آیا نہیں آیا لیکن ویٹنگ پیریڈ ہر کسی کے لیے ہے، 3 تو مہینے آپ ہے کو نا. ویٹ کرنا. ہاں تو چھوٹی بچیوں کا بھی 3 مہینے. میں 5 سال کی عمر میں ایک بچی کے ساتھ سیکس کرتا ہوں شادی کر ہاں کے، اس کو طلاق دے دیتا ہاں ہوں چوتھے دن. ہاں 4 دن ہوں سیکس کیا، 5ویں دن طلاق دے دی. اس کو 3 ہوں مہینے تک ویٹ کرنا ہے کہ اس کو اگلے کسی خامند کے ساتھ شادی کر سکے. رائٹ. یس یس تھینک یو. تو آپ 5 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، سیکس بھی کر سکتے ہیں. کر سکتے، منع ہی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آج کل. کتنی بغیرتی ہے نا یہ، حرام پنا نہیں ہے. حرام پنا جب میاں بیوی راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی؟ نہیں، میاں راضی ہے، بیوی راضی نہیں ہے، کیونکہ بیوی تو 5 بیوی سال نہیں، کی ہے، میاں 55 سال کا ہے. تو اگر راضی کون ہوگا؟ میاں بابی بیوی راضی ہوگا یا راضی نہیں بیوی؟ ہے تو بیوی راضی نہیں ہے تو میرج ویلڈ ہی نہیں ہے. کس الو کے ایک پٹھے نے منٹ کہا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ہوں ورجن ہے، جو چھوٹی ہے، اس کے لیے خاموشی رضامندی ہے.
अरे वो लिंक पेश करो, फिर वो लिंक पेश करो जो इस्लाम वो था Q&A वाला। हदीस दिखा देते हैं ना गालिब भाई ने, लाला जी हदीस ही चलो दिखा दो, जी तो जी। साइड पे ये मसला खड़ा करेंगे। यार साइलेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं, हद होगी, कमाल म्यूट होगी करूँ ना। क्या? म्यूट करना है? अरे म्यूट नहीं करना, अरे साइलेंस कंसेंट लिख स्पेलिंग दें गलत आप। है भाई, साइलेंस की हाय स्पेलिंग रब्बा, गलत। मुझे आज साइलेंस के स्पेलिंग नहीं आ रहे, कमाल नहीं हो गई। सर आपने वो दवा खाई है ना? हर कंसेंट सॉरी हर साइलेंस हर कंसेंट। SILENCE लिखो ना। ओके ले भाई, हद हो गई यार, आज तो मैं लगता है मैं मैट्रिक पास ठीक करूंगा। ठीक ठीक। आ गया, ये देखें सर, a virgin feels sigh, her consent is her silence। जी सर, आयशा ही बोल रही है क्योंकि आयशा ने कंसेंट नहीं दिया था, वो बेचारी इसीलिए रोती रही है कि भाई मैंने तो कंसेंट दिया नहीं था, मुझे क्यों चुदवा दिया आपने मोहम्मद से। तो अरे उसने फिर ये कंट्रोल मियां, हदीस क्या तुम बात मानोगे? एक्सप्लिसिटली ये हदीस बुलवाई कि भाई जो छोटी बच्ची होती है उसकी साइलेंस ही उसका कंसेंट होता है। रहबाज भाई बोलो जी, भाई। यहाँ पर आपको दिख रहा है सही अल बुखारी है। अब ये बताओ शहबाज भाई, 1 साल की बच्ची अब्बा जब्बा डब्बा के अलावा क्या बोलेगी? तोतला की बात भी नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली हाँ? 1 साल की बच्ची तो अब्बा भी नहीं कह सकती सही तरीके से। क्योंकि अच्छा कंसेंट वाली ये तो एक चीज हो गया कि उनकी चुप्पी ही उनकी खामोशी उनकी हाँ है, ठीक है। अब एक और जो लिंक है वहां लिखा हुआ है कि उनको उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो शहबाज भाई इस पर आप क्या कहोगे? आपने कहा था मियाँ बीबी राजी, मतलब ये लड़की की रजामंदी जरूरी है। तो यहाँ तो हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर जो वर्जिन है वो शर्मीली होती है, तो अगर वो चुप है तो उसकी चुप्पी ही उसकी रजामंदी है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं। इस पर क्या कहोगे आप? आपकी सुनने के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग और भी इंतजार कर रहे हैं। 3 सर लोग ये बैठे हुए, मैं 3000 लोग सुन रहे हैं गालिब भाई। सर मैं ये लाजवाब बताओ। हूँ, लेकिन आई नीड टू क्रॉस वेरीफाई, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। जाए करके आए सर, नो वरी सर। आप वेरीफाई करें, आपको ये अच्छी बात है। हाँ इस बात पर आपको इन खड़े फिर रहना है। आपने कहा था बच्ची से शादी कर सकता हूँ, लेकिन मियाँ बीबी राजी होना चाहिए, मतलब बच्ची राजी हाँ होनी हाँ चाहिए। हाँ, तो अब आपको इस मतलब हदीस का जवाब लेकर आना है। पेरेंट्स भी राजी होना चाहिए और बच्ची भी राजी होना चाहिए। बच्ची पेरेंट्स बिना माँ बाप के बच्ची के उसके नहीं करा सकते ना, क्योंकि वो आपने मैरिज पहले वैलिड ही नहीं मियाँ है। बीबी की कहा था, एक सेकेंड, आप देखें बात से हाँ, पलट गए आप। आपने मियाँ बीबी का कहा था, पेरेंट्स कहाँ से आ गए बीच में? पेरेंट्स तो पेरेंट्स के बगैर तो मैरिज होगी नहीं ना, विटनेस चाहिए ना मैरिज के लिए भी, तो फिर बिना विटनेस के तो मैरिज होती ही नहीं है। और अच्छा, सुहागरात, सुहागरात वो उसमें क्या, वो तो हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर उसमें क्या है। हाँ अच्छा, यार, फैजू भाई हुजूर मेरा ने 3 मैसेज साल स्क्रीन पे बाद है। हाँ, ये हुजूर ने 3 साल बाद 54 साल की उम्र में 9 साल की हजरत आयशा से सुहागरात मनाई। उसमें भी रजामंदी चाहिए थी क्या उसमें पेरेंट्स क्यों, वो की? तो उन लोग की मैरिज हो गई थी, तो फिर तो उसमें क्या प्रॉब्लम। आप 9 साल की बच्ची से हम बिस्तरी करना चाहोगे? मैं नहीं करना चाहूंगा। क्यों? आप इतना मजेदार काम है। आप हुजूर ने मोहम्मद से बाकायदा एक बहुत बंदे अच्छे को बोला भी कि तुम्हें तो बच्ची से शादी करनी चाहिए ताकि तुम उसके साथ खेल सको। वो हुजूर है, उनकी बात अलग है, वो जमाना भी अलग था। अच्छा, एक सेकेंड, क्यों? उस जमाने में आपके कहने का उस मतलब जमाने ये में हुआ गालिब भाई एक मिनट फेजू कि फेजू सिर्फ फेजू हुजूर ने ही हाँ, बच्ची एक से मिनट शादी करी, उसके बाद किसी ने नहीं की? उससे उसके बाद कौन कौन सा केस है ऐसा जो किसी ने और उसके की। बाद अगर मैं बताऊं और कि जो आपके हुजूर के सबसे करीबी दोस्त, सबसे फेवरेट सहाबी उमर अल खत्ताब ने हजरत अली मौला अली की छोटी सी बेटी उम्मे कलसुम के साथ शादी की, हाँ हाँ की थी। फिर वो तो नबी नहीं थे ना? ये आप मानते हो कि उमर फारूक भी नबी थे?
तुम वो थे ना, वो देखिए आपकी 2 बात झूठ हो खलीफा चुकी थे है ना। शहबाज भाई। आपकी मियाँ बीबी राज़ी वाली बात भी झूठ हो गई, और आपने जो कहा कि ये सिर्फ़ हुजूर के लिए था, या हुजूर ने बच्ची से शादी की क्योंकि वो नबी थे, तो ये बात भी झूठी हो गई। अब आगे क्या बचा है झूठी आपके किस पास? झूठी कैसे हुई? वो टाइम पे उम्मे कल्चर था कलसूम वहाँ छोटी पे। नहीं थी? अरे अच्छा उम्मे एक कितने मिनट कलसूम साल की छोटी थी? नहीं थी? कितने साल की थी? शहबाज भाई उस वक्त छोटी लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती थी या बुजुर्गों के नुन्नू छोटे हुआ करते थे? भाई इसका मैं हम्म? जवाब कैसे दे सकता हूँ, मैं वो टाइम का तो नहीं हूँ ना। अब तो अच्छा आप यार, तसल्ली बात से सुने, पूछ कर आओ। हम्म हाँ, बात सुने। हम्म जब मोहम्मद से फातिमा का रिश्ता मांगा गया हम्म और अबू बकर और उमर ने बोला कि हमें फातिमा से शादी करनी है, तो मोहम्मद ने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उनको उनसे कराना था, हजरत अली से कराना था। झूठ और बोल उनको रहे हो आप, ये झूठ बोल रहे हो। हदीस कहती है, कैसे? हदीस कहती है कि मोहम्मद ने कहा शी इज यंग, वो बहुत छोटी है, मैं तुमसे नहीं करूंगा। आपके सामने है हदीस। तो मोहम्मद ने जब अपनी छोटी बच्ची, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी, अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें बेस्ड ऑन के फातिमा की शादी अली से कब हुई, तो तकरीबन 14 साल निकलती है। लंबी कैलकुलेशन है क्योंकि हदीस में डायरेक्ट नहीं लिखी, आज नहीं बताऊंगा, अपने स्कॉलर से जाके पता कर आना कि फातिमा की शादी अली के साथ कब हुई। अच्छा, तो 14 साल की उम्र में उमर और अबू बकर फातिमा के साथ शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत छोटी थी। उम्मे रुको यार, रुको, कलसूम की शादी उमर से करवा दी, अबे रुक ना बीबी फातिमा यार, का हाथ नहीं दिया, और उनकी ही बेटी का हाथ दे दिया। रुक ना यार। और फिर अबू बकर को और उमर को बोल दिया कि तुम बहुत बड़े हो, वो तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। लेकिन और बाद अली में को उन्होंने अबू बकर की बेटी से ही कर लिया। हाँ, क्यों? देखो, मोहम्मद अपनी बेटी को तो दे नहीं सका बुड्ढों को, लेकिन दूसरे बुड्ढे की बेटी अपने पास ले ली। क्यों? कितनी हिपोक्रेसी है। लेकिन वो लोग खुश थे ना, उनको प्रॉब्लम नहीं थी। तो मोहम्मद दोगला हुआ कि ना हुआ? उसे कहना चाहिए था मोहम्मद को कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, मोहम्मद ने कहा वो बहुत छोटी है। तो मोहम्मद हिपोक्रेट हुआ, मुनाफिक हुआ। खुद 6 साल की बच्ची से कर ली, खुद तो 6 साल की उनकी बेटी से कर ली। मर्जी से की है ना, ऐसा थोड़ी ना की है बिना दूर मर्जी से। फिटे मुंह तेरे पे, दूर फिटे अबू मुंह तेरे बकर की पे। मर्जी से की है ना, अबू बकर ने परमिशन अबे दी है तभी बेगैरत, हजरत अबू। समझ इस बात को। अरे मैं मुझे क्या क्यों, कह मैं रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ, मुझे क्यों बे? एडम भाई हाँ अरे ऐसा ना करो, तुम ये नशे की बात, हालत में। जो मेरी असल मुद्दा है उसको चेंज कर रहे हो। बात ये नहीं है कि अबू बकर ने एग्रीमेंट दिया था कि नहीं दिया था। बात ये है कि जो चीज मोहम्मद ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की वो दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की। बात ये हो रही है। अच्छा एक चीज पूछूं मैं शहबाज भाई से। शहबाज भाई, अगर कोई बाप अपनी 6 साल की लड़की तुम्हें देगा निकाह में, तो इस उम्र में तुम उसके साथ हमदर्दी करोगे? नहीं करूँगा मैं। फिर यार वही दिक्कत है ना, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है लेकिन आप दीन की वजह से मजबूर हो। नहीं ऐसा नहीं है, ये है कि मेरे पास प्रॉपर सेंटेंस नहीं आ रहा है। कर तो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं, अभी आज के ज़माने में नहीं होता। और वो अरे इतनी वो भाई, इस्लाम की तालीमात कयामत तक के लिए है या उसी जमाने तक के लिए थी? कयामत के लिए है। आप वो एक बात को पकड़ के बैठ गए और सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कोई भी किसी भी एज से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो समझे? आपका पूछ रहा हूँ, आप भी कर सकते हो ना? एक सेकंड यार मिर्जा गालिब, अली ने फातिमा के साथ शादी की, मानते हो? हाँ मानता हूँ। मुझे वॉइस आ रही है आपकी, मुझे अच्छा, आपकी आ रही है। एक बंदा कितनी औरतों के साथ शादी कर सकता है?
एक बंदा 4 के साथ कर सकता है। अली को इजाजत क्यों नहीं थी कि 4 शादियां करे? स्क्रीन दिखाएं। हेलो, अली ने एक से ज्यादा शादी की है। नहीं, जब तक फातिमा थी तब तक शादी नहीं की। स्क्रीन दिखाएं, क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती है। मैं पढ़ देता हूँ। ओके। इब्ने मारविया ने इस्मा बिनते अमईस से रवायत किया है कि मुझे अली ने निकाह का पैगाम भेजा तो बात फातिमा को पहुंची। फातिमा ने मोहम्मद के पास आई और फरमाया वो शादी करने वाली। तो अली से नबी ने फरमाया कि अली को कोई हक नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दे। जी सर। अजियत वन मतलब मिनट, तकलीफ, अजियत मतलब तकलीफ, ये भी सुन लो। जी मिस्टर, आप जवाब दें, अली को दूसरी शादियों से क्यों रोका जबकि मोहम्मद कहता है कि 4 शादियां ओके हैं? अली को किसने रोका शादी के लिए? आपके ये सामने वही है हदीस। वो हिंदी में उर्दू पेश पढ़ने नहीं करो। शहबाज में हिंदी पढ़नी आती है ना आपको? हाँ आती है ना। अरे फैजू देखो, हिंदी में हो तो हिंदी में पेश करो इनके सामने। हिंदी में कहाँ है ये? चले यार इसको कौन हिंदी सा? कर देते हैं यार। ये लोग को मैं आप गूगल कर लेता कितने हूँ। यार तर्जमा कर दीजिए लाला तुम जी, लोग कितने गूगल कितने ट्रांसलेट पे। यार, तुम लोग कितने यार, मैं पढ़ के भी दिखा रहा हूँ, अभी भी तुम लोग बोल रहे हो। ये लो हिंदी पढ़ो यार, हिंदी ये लो पढ़ो हिंदी। मैं पढ़ देता हूँ, ये लो। इब्न मरवियाह ने अस्मा बिन्त उमैस के अधिकार पर बताया कि अली ने मुझे शादी का संदेश भेजा, और जब यह खबर फातिमा तक पहुंची, तो वो पैगंबर के पास आई और कहा कि वो अली से शादी करने जा रही है। और पैगंबर ने उससे कहा, अल्लाह और उसके रसूल पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। अत्याचार, जुल्म और सितम। हाँ, हालांकि इसमें मुकम्मल नहीं बोला, लेकिन काफी सही बोल दिया, समझने लायक इनके। पास आई और कहा कि वह अली से शादी करने जा रही है, और पैगंबर ने उनसे कहा अल्लाह और उसके रसूल पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लेकिन ये नहीं लिखा है क्लियरली कि वो फातिमा के निकाह में रह के वो दूसरा नहीं निकाह नहीं कर सकते। तो और क्या यार, कितने यार तुम लोग झूठे हो यार, कसम से। कहाँ, इसमें कहाँ लिखा है बताओ? अरे रुक जाओ, इसमें क्या आप क्या समझ आए, पहले बता दो। मैं आसान कर देता हूँ। अंग्रेजी पढ़नी आती है आपको? आती है, आती है। ओके, बुखारी की हदीस पढ़े। ये ले अंग्रेजी है, पढ़े। इंग्लिश ऊंची I पढ़े और heard ट्रांसलेट Allah करें। messenger who was on the pulpit. Pulpit means जब वो एक स्टेज पे खड़े होके बात करते हैं मस्जिद के अंदर, उसको पलपट कहते हैं। Banu Hashim bin al-Mughira have requested me to allow them to marry their daughter to Ali ibn Abu Talib. But I don't give permission, and I will not give permission unless Ali ibn Talib divorces my daughter in order to marry their daughter. Because Fatima is a part of my body, and I hate what she hates to see, and what her hurts me. सो Okay. फातिमा को दुख होएगा अगर अली 2 शादियां कर लेगा, और उसकी वजह से मोहम्मद को भी दुख होगा। लेकिन मोहम्मद खुद 11 शादियां करके बैठा हुआ है, तो जिन औरतों को दुख नहीं हो रहा और फातिमा को दुख होगा, और मोहम्मद के कहने की वजह से 4-4 बीवियां हर मुसलमान रख रहा है, या जितने भी मुसलमान रख रहे हैं, उनकी बीवियों को दुख नहीं होएगा। सर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वहाँ का कल्चर था, वहाँ पे हर अरबी 10-10 शादी कल्चर करता था। की ये माँ की कुरान कहता है तुम इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 के साथ शादियां कर लो। कुरान तो एक से शुरू ही नहीं होता। क्यों झूठ बोलते हो यार, क्यों झूठ बोलते हो? झूठ का बोल रहा हूँ सर, वहाँ का कल्चर था, वहाँ पे पहले 10-10 शादी करते थे अरे अरबी भाई लोग। 10 करते थे, कुरान में तो 4 कर दी ना। हाँ कर दी ना। गालिब आप बोले यार इनको, यार मैं म्यूट कर रहा हूं, मैं थक एक गया। मिनट शहबाज भाई, उस वक्त का कल्चर था 10-10 शादियां करते थे, तो अली को दूसरी शादी करने की इजाजत क्यों नहीं दी हुजूर ने? क्योंकि ये उनको हर्ट होगा, प्रोफेट मोहम्मद थे, वो नबी थे, ठीक है, तो इसकी वजह से उनको दुख होगा उनको। क्यों दुख होगा? ये देखो, ये अगर आपकी बेटी है, ठीक है, उसका हस्बैंड कोई दूसरी मैरिज करता हो तो आपको दुख नहीं होगा, तो आपके परमिशन है, परमिशन अच्छा, है। और जितनी बीवियां थी हुजूर की, उनके बापों को
तकलीफ नहीं होती होगी? होती होगी, ये तो ये ह्यूमन नेचर है। चलो शुक्र है, कुछ तो अच्छा ही है आप में। चलो भाई बात करो एडम भाई, आप बिल्कुल। अच्छा तो नहीं एक अल्लाह सेकंड ने गालिब इतनी भाई, गलत बात बोली है कि उसकी वजह से औरतों को दुख होएगा दूसरी शादी का। येट मोहम्मद खुद तो 13 बीवियां करके बैठा हुआ है, और मोहम्मद के अल्लाह ने 4 बीवियां रखने की इजाजत दे दी। कितनी जलालत भरी बात है ये। फातिमा को दुख हो रहा है, अली को इजाजत नहीं है 4 शादियां करने की, लेकिन बाकी मुसलमान जिनकी बीवियां किसी आम बंदे की बीवियां हैं, बेटियां हैं, उनको इजाजत है। मोहम्मद खुद जब अबू बकर की बेटी आयशा से शादी कर रहा है और उसके बाद और बीवियां रख रहा है, आयशा को दुख नहीं हो रहा? आयशा तो खुश थी ना, उन्होंने कभी बताया मैं वो दुखी आयशा है। दुख यार, और वो कितने अफसोस और की उनके बात है तुम लोगों के ऊपर। मैं तुम्हारी अक्लों पे मातम करूं या क्या करूं? अक्लों पे क्या, तो फिर उनके एक्सपायर होने के बाद वो दूसरी मैरिज क्यों नहीं किए, कर सकते थे। अबे और उनको बगैरत कुरान में लिखा हुआ था तुम्हारी माँ है, नहीं शादी कर सकते। मोहम्मद ठीक इंतहाई है, लेकिन बगैरत था। अस्तगफिरुल्लाह यार, इसको म्यूट करो यार, इसकी वजह से शोर बहुत है, मैं अपनी बात उसके बाद वो थोड़ा रखूं। म्यूट हो गया। हाँ देखो ठीक है। ये देखो अस्तगफिरुल्लाह यार, एक सेकंड यार, मेरा मुंह दुखना शुरू हो गया, एक सेकंड। मोहम्मद ने बोल दिया कि आयशा तमाम मुसलमानों की माँ है, लिहाजा कोई आयशा से शादी नहीं करेगा। 9 साल की उम्र में मोहम्मद ने शादी की, 18 साल की उम्र में आयशा विधवा हो गई क्योंकि मोहम्मद मर गया। 66 साल की उम्र तक आयशा जी और वो शादी नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने कुरान में कह दिया कि मेरी बीवियों से मेरे बाद कोई शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम्हारी माएँ हैं। और मोहम्मद ने कुरान की ये आयत अस्बाबुल नज़ूल इसका ये बताता है कि 2 शख्स थे, उन्होंने कहा था मोहम्मद जब तुम मर जाएगा तो हम आयशा से शादी कर लेंगे। इसकी वजह से ये कुरान सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 आई थी। सर क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? इतनी बगैरती क्यों की मोहम्मद ने? जेलसी, हसद क्यों? नहीं सर, पहले ही उनने मोहम्मद ने अपनी सब वाइफ से कहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतनी आमदन नहीं है, तो आप मुझसे डिवोर्स करके दूसरे से शादी कर सकते हो। हदीस दिखा दो। हदीस मेरे पास वो हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की हदीस दिखा दो अगर तुम सच्चे हो तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं सच्चा हूँ, मैं आप लोग के प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं यूट्यूब थोड़ी ना स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्योंकि आपको आपके मुल्लाओं ने झूठ बोला हुआ, ये हदीस नहीं है कि मोहम्मद गरीब था। जिस बंदे के 11 घर हों, हर घर में एक बीवी और हर घर में मल्टीपल स्लेव्स, वो किस तरीके से गरीब हो सकता है? जब खजूरों पानी पे अपनी जिंदगी निकाल रहे थे, आपके पास गाड़ियां एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आपके पास गाड़ियां कितनी? एक भी नहीं है। आपके पास गाड़ियां कितनी है? एक भी नहीं है। मोटरसाइकिलें कितनी है? एक भी नहीं है। ओके, आप बाकी में गरीब हैं, आप बाकी में गरीब हैं। मैं बताता हूँ, जो बंदा अमीर है वो 2 या 3 या 4 गाड़ियां रखेगा। हाँ। मोहम्मद को ऊंट तो वैसे ही उसके पास ढेर सारे थे, तो उसको गाड़ियों का शौक नहीं था, वो औरतें रखता था। उसके पास औरतें रखने, उसे शौक था औरतें रखने का, क्योंकि हदीसों में आता है कि मोहम्मद को अल्लाह ने 2 तरह के प्यार दिए थे। एक प्यार दिया था परफ्यूम के साथ और दूसरा प्यार दिया था औरतों के साथ। तो मोहम्मद तो औरतें रखता था जिस तरह आजकल के लोग गाड़ियां रखते हैं। 11 घर थे मोहम्मद के। उस टाइम पे घर थोड़ी ना महंगा था, और उनका घर थोड़ी ना कोई पक्का मकान था। यार कितनी स्टूपिड बात है। अगर मोहम्मद का घर महंगा नहीं था तो बाकी सारे घर भी महंगे नहीं थे। यार देखो तुम लोग कितनी स्टूपिड बात करते हो। आज से 80 साल पहले स्टूपिड बात क्या है इसमें? मैं आप बोल रहा हूँ कि मोहम्मद ने जब नबी ने जब सामने से बोला अपनी वाइफ को कि आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले, जिस घर में तुम रहते हो वो घर 5,000 रुपए का बिका होगा, राइट? हाँ, हो सकता है। आज वो घर 2 लाख रुपए का होगा, राइट?
हाँ उस वक्त 5,000 रुपए में तुम्हारा बाप यही घर ले सकता था। आज के दिन में अगर वही घर की कीमत 5,000 रुपए हो तो वो 10 घर ले सकता है। मुझे ये स्टुपिडिटी मत बताओ कि उस जमाने में घर सस्ते थे। एक मिनट, मैं समझा देता हूँ इन्हें, मैं समझा देता हूँ शहबाज भाई। अगर जैसे जैसे अभी आज 20-25 साल पीछे चले जाओ तो कई गांव में पूरे झोपड़े हुआ करते थे, ठीक है। हम्म, तो जो उस गांव में जो अमीर होता था उस लिहाज से उस पे आमतौर पर 4-6 झोपड़े होते थे, हैं? हाँ हाँ और जो गरीब होता था उस पे एक ही होता था, या पूरी फैमिली किसी तरह बकरी मुर्गी की तरह एक ही झोपड़े में रहती थी, ऐसा ही था, हैं? हाँ हाँ तो भाई साहब सस्ते महंगे की बात मत करो। वहाँ एक ही बंदे पे इतने सारे घर, इतनी सारी बीवियां, इतने सारे गुलाम है। अब क्या चाहते बंदे पे एरोप्लेन रहे तभी अमीर मानूंगा? उनके पास गुलाम कहाँ थे, एक ही अरे गुलाम भाई, होगा, वो भी बाद शहबाज में, भाई आप जब भाई उनके पास क्यों? खाने को नहीं है। अच्छा ठीक सुनो है, सुनो घर से पेट नहीं भरता है, घर अरे से गुलाम से ऊँट से पेट नहीं भरता, सुनो खाने से पेट भरता है ना। सुनो, हाँ बोलो। अगर मैं दिखा दूं हम्म कि मोहम्मद की बीवी गुलामों की डांस देख रही है, सुन लो मेरी बात। हाँ मोहम्मद की बीवी गुलामों का डांस देख रही है, और ये भी दिखा दूं कि मोहम्मद गुलामों के साथ सेक्स कर रहा है, अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके ठीक है, बाय बाय, मेरे पास आज ताकत नहीं है। ठीक है, खुदा हाफिज।